Hello students, and in the continuation of soil fertility lecture series, today we will learn about percent base saturation, acidity percent saturation, exchangeable sodium percentage, sodium adsorption ratio and residual sodium carbonate. Actually what are these things and what is the importance in soil management and crop production? तो ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी क्या रेलिवेंस है एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड and importance with respect to soil management and crop production, and these terms are very relevant for soil fertility. So first important term is percent base saturation. So to understand percent base saturation, it is important to know what is base saturation. Actually in soil there are many cations, anions, and these cations are responsible for base formation or acid formation. Some cations like calcium, magnesium, potassium, sodium make base and by hydrolysis of water. तो जब ये calcium, magnesium, potassium, sodium, these four cations are dominant in soil, definitely there is more base, and because of this base soil pH tends to increase. But on the other side, cations like hydrogen and aluminum are more, definitely there is more acidity and soil pH tends to decrease. So the relative dominance of these type of cations decide the soil pH. Okay, so in soil there are a number of cations, so the total dominance of different type of these ions decide soil pH. So there are four cations: calcium, magnesium, sodium and potassium. These are responsible for base formation, strong base formation, and because of the dominance of these four cations there is more base formation, और इसके कारण क्या होता है, soil pH इंक्रीज करती है. तो दूसरे cations हैं उनके इतना इम्पैक्ट नहीं है. इन दिस जो ये फोर cations हैं इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. सो एंड how it is calculated? So these are calculated by term PBS, percent base saturation. So percent base saturation is calculated by what is the amount of these four cations, and this amount is termed in milliequivalent per 100 gram soil, or new term is centimole per kg soil. So this is the old unit and this centimole per kg is new unit. And how PBS is calculated? The total amount of calcium plus magnesium plus sodium plus potassium divided by CEC and multiplied by 100. Okay, so why it is divided by CEC? Actually CEC is cation exchange capacity and it tells about how many exchange sites are available in soil. तो CEC से हमें ये पता चलता है कि कितनी exchangeable site soil में है and how much is occupied by calcium, magnesium, sodium, potassium. इसका जो रेशियो निकल के आएगा दैट इज PBS. सपोज कैल्शियम कंटेंट इज 8 सेंटीमोल पर केजी एंड मैग्नीशियम इज 2 सेंटीमोल, पोटेशियम इज 2 सेंटीमोल एंड सोडियम इज 2 सेंटीमोल पर केजी सॉइल. सपोज एंड CEC, सपोज CEC मान लेते हैं हम, CEC is 20 centimole per kg soil. So in this case, when calcium is 8 centimole, potassium 2, magnesium 2, sodium 2 and total CEC is 20, then the PBS is, what is the total? Calcium, magnesium, potassium, sodium, 8 plus 2 plus 2 plus 2, 8 plus 2 plus 2 plus 2 divided by 20 into 100, that is 14 divided by 20 into 100. ये हमारा कितना जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 70%. So in this case PBS is 70%. So PBS is 70%. What does it mean? It means that 70% of exchangeable sites are occupied by these four cations: calcium, magnesium, sodium, potassium. तो ये तो वैल्यू पता चली. माना PBS होती 50%, इट मीन्स 50% ऑफ एक्सचेंजेबल साइट्स आर ऑक्यूपाइड दिस बाय दिस फोर कैटायंस. इस वाली की रेलिवेंस क्या है? देखिए रेलिवेंस ये है कि इफ PBS इज लेस देन 80%, base saturation is less than 80,
द सॉइल इज टेंस टू बी एसिडिक, टेंस टू बी एसिडिक। तो उस केस में क्या होगा, ये सॉइल क्या होगी, एसिडिक होगी। इफ इट इज मोर देन 80, पीवीएस इज मोर देन 80, देन सॉइल टेंस टू बी हाई पीएच और अल्कलाइन सॉइल होगी। क्योंकि होगा क्या, जब 80% से ज़्यादा सैचुरेशन हो जाता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम की डोमिनेंस बढ़ेगी, बेस ज़्यादा बनेंगे, सॉइल पीएच ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवीएस। तो जो न्यूट्रल पीएच रहती है अबाउट 7, पीवीएस कितना रहता है, 80% रहता है। तो इसका एक ये भी है कि जैसे जैसे पीएच कम होगी, जिसका मतलब पीवीएस क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, पीवीएस क्या है, ज़्यादा है। तो परसेंट बेस सैचुरेशन की वजह से पीएच पे डिफरेंस आता है, या हम पीवीएस के थ्रू जान सकते हैं कि व्हाट इज द सॉइल पीएच की, क्या पीएच जा रही है, एसिडिक रेंज में जा रही है, एल्कलाइन रेंज में जा रही है। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ पीवीएस। ओके, another term is exchangeable sodium percentage, and it is termed as ESP. And ESP tells about how much exchange sites are occupied by sodium. So ESP, exchangeable sodium percentage. Okay, so and formula is amount of exchangeable sodium divided by CEC into 100. And look here again, this amount of exchangeable sodium is divided by CEC, means this CEC indicate number of available exchangeable site and how much are occupied by sodium. So in the example, the sodium was 2 centimole and CEC was 20 into 100, that is 10%. So exchangeable sodium percentage is 10%. So it means that out of total exchangeable site, 10% are dominated by or occupied by 10% sites are occupied by sodium. So ESP is 10%. If ESP is less than 15, then no problem, soils are not alkali soil. If it is more than 15, then soils are alkali. So this is the relevance of exchangeable sodium percentage. So PBS indicates the total amount of base forming cations and ESP tells how much exchangeable sites are occupied by sodium, and this ESP is important in categorization of saline and alkali soil. So this 15 value is important for categorization. Similarly, we can calculate the amount of exchangeable calcium percentage. Exchangeable calcium percentage निकाल सकते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल में कैल्शियम कितना था, 8 था। तो इफ वी वांट टू नो exchangeable calcium percentage, so 8 divided by 20 into 100, that is 40%. So exchangeable calcium percentage is 40. It means 40% exchangeable sites are occupied by calcium. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हर उसके आयन के लिए, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट है कौन सा है, सोडियम है, बिकॉज सोडियम हैज डिफ्लक्चुएशन टेंडेंसी, उससे सॉइल क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन रेट नहीं होता, परमिलिटी रिड्यूस हो जाती है, एंड देयर इज पुअर सॉइल स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई वी गिव मोर एंड मोर एम्फेसिस ऑन सोडियम. व्हाइल ऑन अदर हैंड कैल्शियम हैज फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट, एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट करता है, एरिएशन बढ़ता है. तो जितना ज़्यादा सोडियम होगा सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी. एंड ऑन द अदर हैंड इफ सोडियम कंटेंट इज हाई, सॉइल क्वालिटी इज पुअर. Similarly, the acidity saturation percentage can be calculated. एसिडिटी सैचुरेशन परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मैंने बताया कि कौन से होते हैं एसिडिक आयंस, मेनली हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम. देखिए आयरन, जिंक, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, बट देयर रोल इन क्रिएटिंग एसिडिटी इज वेरी लेस. दैट्स व्हाई जनरली वी इग्नोर द कंटेंट ऑफ जिंक, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीज. जनरली वी कंसिडर हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम. सो एसिडिटी percentage acidity saturation can be calculated, and in this case we measure the hydrogen ion and aluminum ion divided by CEC into 100. Suppose hydrogen is 1 centimole, suppose 1 centimole, and aluminum is suppose 2 centimole, and CEC is 20 centimole
per kg soil से. In this case percent acidity saturation or percent acidity cation saturation is 1 plus 2 20 into 100 that is 15. तो परसेंट एसिडिटी सैचुरेशन इज 15. तो पीवीएस निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम परसेंट एसिडिटी सैचुरेशन निकाल सकते हैं. तो जनरली हम बहुत एसिडिक सॉइल होती है तो उस केस में हम पीएस निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल सॉइल में यदि एसिड न्यूट्रल सॉइल है तो उसमें हाइड्रोजन एल्यूमिनियम कंटेंट कम होगा. तो अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि हम एसिडिटी में केवल हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम को क्यों ले रहे हैं, जिंक और कॉपर को क्यों नहीं ले रहे हैं, मैग्नीशियम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है सॉइल एसिडिटी में थ्रू हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है. आयरन का है लेकिन इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन एल्यूमिनियम क्या है, बहुत कम है. दूसरा ये क्या एक्सचेंजेबल फॉर्म में रहते हैं तो तुरंत सॉइल सॉल्यूशन में आ जाते हैं. तो इस कारण से ये जो दो कटाइंस हैं बहुत एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो हमारे एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करने वाले आयंस 2 हैं, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम, एंड इन बेस देयर आर 4 कटाइंस. सो दिस वाज द परसेंट एसिडिटी सैचुरेशन. Another term is SAR, sodium adsorption ratio, and this SAR also indicate the dominance of sodium or amount of sodium, SAR, and this SAR actually is not for soil parameter, actually it is for irrigation water. It is calculated for irrigation water. आप इसको ध्यान कर लीजिए. SAR जैसे हमने ESP को सॉइल के लिए निकाला, इसको हम सॉइल के लिए नहीं निकालते हैं. दिस SAR इज यूज फॉर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एंड इट्स कंटेंट टेकन इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. और हमने वहाँ क्या लिया था, सेंटीमोल पर केजी सॉइल. बट यहाँ हम वाटर में क्या लेंगे कि हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में आयन कंटेंट देखते हैं. एंड SAR इज कैलकुलेटेड बाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट हाफ ऑफ कैल्शियम कंटेंट plus magnesium content, and this sodium calcium magnesium content is in milli equivalent per liter. ध्यान दीजिए इसको, ये this is milli equivalent per liter. तो अब हम इसको क्यों लेते हैं, SAR पे हमारी एम्फेसिस क्यों है? If water is saline there is more sodium adsorption ratio, it is not exchangeable, it is adsorption ratio कि कितना ये adsorb होगा clay particle पे जाके. If SAR is high, generally more than 3 देन इट क्रिएट प्रॉब्लम. तो अगर इरिगेशन वाटर में सोडियम का डोमिनेंस ज़्यादा है कैल्शियम मैग्नीशियम से, देन देयर विल बी डिफ्लॉकुलेशन. इफ देयर इज अ मोर डोमिनेंस ऑफ कैल्शियम देन देयर विल बी फ्लॉकुलेशन, एग्रीगेशन, और ये कंडीशन क्या होगी, अच्छी होगी. बट इफ SAR इज हाई, इट मीन्स देयर इज मोर एड्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑन क्ले पार्टिकल. इट मीन्स मोर डिस्पर्जन, पुअर इन्फिल्ट्रेशन, पुअर परमेबिलिटी एंड पुअर पर्कुलेशन. अगर SAR ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सॉइल will be dispersed because there will be more sodium content and the infiltration rate will be very poor. तो जब होगा नीचे वाटर पहुंचेगा ही नहीं, there will be poor percolation of water and there will be water stagnation on surface. So if SAR is high definitely soil structure will be poor. तो इस तरह इसके बिहाफ पे हम SAR पे हम soil quality irrigation water quality को हम क्लासीफाई करते हैं C1 क्लास, C2 क्लास, C3 क्लास, C4 क्लास. और अगर ये 3 से ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अप टू 10 जो है सेफ लिमिट में मान सकते हैं, बट इफ इट इज मोर देन 3 देन इट क्रिएट प्रॉब्लम. ओके, सो दिस SAR इज फॉर जजमेंट ऑफ इरिगेशन क्वालिटी एंड ESP इज फॉर सॉइल क्वालिटी एंड इट इज आल्सो नोन एज आल्सो टर्म एज RNA, SAR. एंड अनदर इज एडजस्टेड SAR. जब हम प्रेसिपिटेशन देखते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम का, जब प्रेसिपिटेशन हो जाता है कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो सॉइल की केमिस्ट्री अलग हो जाती है. तो फिर हम एडजस्टेड SAR की वैल्यू निकालते हैं. उसके लिए एक टेबल होती है, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है. तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जो SAR की जो कैलकुलेशन होगी वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होगी, और ये इट इज़ फॉर इरिगेशन वाटर. अनदर टर्म इज RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट. Residual sodium carbonate, actually carbonates and bicarbonate, calcium, magnesium are present in soil and they make the different salt
and if calcium content is less, then the sodium will make the sodium carbonate and sodium bicarbonate, and then there will be a negative impact on soil structure. That's why we use to calculate RSC, residual sodium carbonate. It is also used for judgment of irrigation water quality, RSC, and it is calculated by the total content of carbonate plus bicarbonate and subtract the quantity of calcium and magnesium. Okay, and these ions are क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मिली इक्वलेंट पर लीटर. अब आप देखिए RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें कहीं सोडियम नहीं आ रहा है, तो फिर इसको हम RSC क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, मान लीजिए अगर 2 आयंस कार्बोनेट के हैं और 2 कैल्शियम के हैं, तो ये कैल्शियम क्या होगा, पूरा इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा. ठीक है. अगर कार्बोनेट ज़्यादा है और कैल्शियम कम है, तो कार्बोनेट क्या रहेगा, सॉइल में रहेगा. कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेंट अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से कम हुआ, तो ये क्या रहेगा, सॉइल में फ्री रहेगा, एंड देन इट विल मेक और विल रिएक्ट विद द सोडियम, और उस केस में सोडियम कार्बोनेट बनेगा. तो सोडियम कार्बोनेट जब रहेगा तो सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, पुअर होगा, और वही जो मैंने बताया परमेबिलिटी प्रॉब्लम, पुअर इन्फिल्ट्रेशन, सब प्रॉब्लम होंगी. तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इफ वैल्यू इज पॉजिटिव, इट मीन्स द कंटेंट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज मोर देन दैट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो RSC की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये 2.5 से ज़्यादा है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है. तो RSC का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, किसके लिए करते हैं, इरिगेशन वाटर क्वालिटी के लिए करते हैं, और आपको समझ में आएगा क्यों ये प्रॉब्लम करता है. अगर कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, कार्बोनेट नहीं बचेगा, तो सोडियम को एल्कलिनिटी करने के लिए वो साल्ट नहीं मिल पाएंगे और एल्कलिनिटी नहीं होगी. अगर एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रहेंगे और इसको कैल्शियम नहीं कर पाएगा, तो एल्कलिनिटी प्रॉब्लम होगी, और पर्टिकुलरली विद सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा एल्कलिनिटी होती है. तो यहाँ देखिए सोडियम RSC रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ कहीं सोडियम आपको नजर नहीं आ रहा है. ये एक समझने की बात है कि ये अगर रहेगा सॉइल में और सारा का सारा प्रेसिपिटेट कर जाए, तो फिर वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा. तो ये मैंने आपको बताया आज. PBS परसेंट बेस सैचुरेशन क्या है, व्हाट इज परसेंट बेस सैचुरेशन, एसिडिटी परसेंट सैचुरेशन, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, देन सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो एंड रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट. तो इसमें जो लास्ट के दो हैं, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो एंड RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, दीज आर यूज्ड फॉर जजिंग irrigation water quality, and ESP and PBS are used for judging soil quality. ओके, तो ये मैं समझता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा कैलकुलेशन के थ्रू, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.